Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty, and in this video I have again come up with an interesting topic for people who are relating to legal discipline, who are interested in the field of research, and also those who are practicing in courts, those who are law students and whatnot. But before I start with my video, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with all such kind of interesting topics, interesting content that we keep on bringing up on Legal Bee. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के डिस्कशन के साथ। मैंने ये एक सीरीज टाइप ऑफ शुरू की है। आई एम ट्राइंग टू पिक अप सम कॉमन क्वेरीज ऑफ पीपल फ्रॉम द लीगल field who are having some common doubts or some current issues that are going on. पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात की थी एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में भी आपको बताया था that how beneficial it will be and how you should take advantage of such kind of moves that are being taken up day by day that are coming up. And इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about legal research. What is research and also what is legal research that we need to discuss. Everybody who is related with law is of course going to read the letter of law in their lifetime, in their college, and also those who are practicing, those who are working as an academician, those who are working in the drafting sector, those who are working in banks and so on. उन सबको कभी ना कभी legal research से पाला तो सबका पड़ता ही है. सो व्हाट इज दिस लीगल रिसर्च? पहले समझते हैं रिसर्च क्या है एंड इसके साथ मैं आपको एक रेफरेंस दूंगी, छोटा सा स्पेशल रेफरेंस टू हाउ यू हैव टू रिसर्च ऑन केस लॉज. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव अ कन्फ्यूजन इन दिस कि केस लॉज पे कैसे रिसर्च किया जाए. एंड माइंडेड, अगर आपको केस लॉज पे रिसर्च करने का सिंपल तरीका पता चल गया तो आप काफ़ी सारे केसेस कोर्ट में जीत सकते हो, बिकॉज यू ऑल नो कि प्रेसिडेंशियरी वैल्यू कितनी है हमारे लॉ में, हमारे कोर्ट्स में. सो लेट अस स्टार्ट. रिसर्च इज़ व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग. अगेन सिंपल वर्ड्स में मैंने इसे डिस्क्राइब किया है, हमें ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स एंड डेफिनेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी है. Now, what is research is actually a type of inquiry. We can understand it as an examination of any particular topic, any subject, any area. It is inquiring into something that has already been searched. You are not searching it. You are not finding it for the first time. It has already been found by somebody. आप उसे दोबारा से रिसर्च कर रहे हो and that is what is the meaning of research. and ये किसी भी एरिया में हो सकता है. हम लोग इस वीडियो में लीगल रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं. लीगल रिसर्च से रिलेटेड एक छोटा सा पैरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी. पहले, law does not sit in a vacuum. Instead, it operates in a complex social context. It reflects the attitudes and behavioral norms and also controls and molds them. However, these norms are also temporospatial, that is changing with time and space. It is desirous that law has to adapt and be dynamic in order to cope with the changes. Now, I would like you all to note the word here, dynamic. लॉ इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी डायनेमिक. ये हम लोगों ने हमारे लॉ कॉलेज में भी पढ़ा है. अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं अभी भी तो आप ये हमेशा पढ़ते आए होंगे दैट लॉ एक डायनेमिक एंटिटी है एंड लॉ हैज़ टू चेंज विद द चेंज इन सोसाइटी. इसीलिए सोशियो लीगल रिसर्च का भी कंसेप्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट. Thereby, legal research becomes essential for ascertainment of law, to point out the ambiguities and weaknesses of law, to critically examine the laws in order to ensure coherence, consistency, and stability of law and its underlying policy, to conduct a social audit of the law, and to suggest reforms in the law. अब ये पैरा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लगा मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है. आप चाहो तो इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के कमेंट सेक्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से. एंड अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो लीगल रिसर्च इज़ एसेंशियल फॉर असर्टेनमेंट ऑफ लॉ. लॉ समझने के लिए,
लॉ की एम्बिग्विटीज एंड वीकनेसेस को समझने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी क्या है, अंडरलाइंग पॉलिसीज क्या है, एंड अल्टीमेटली फॉर we can say analyzing and dissecting what the law is, we need to understand and we need to use this tool of research for that purpose. भले ही हम लोग स्कॉलर्स हों, एकेडमिशियंस हो, लॉ स्टूडेंट्स हो, या प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हों, या हम बैंक में लॉ ऑफिसर्स हों, कहीं पर भी हो, लीगल रिसर्च हमारे काम आने वाला एस्पेक्ट है. एंड दिस इज समथिंग विच एवरीबडी हैज़ टू कम अक्रॉस इन देयर लाइफ टाइम इफ you are related in the law discipline. Now let's see who all can be the beneficiaries of legal research. Legislators, because they are making the law, they are drafting the law, they need to know various technicalities of legal research as well. Judges, of course, they have to be updated with the law that is coming up, that is changing in the society. तो उनको social legal research का भी aspect रेफर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा. Legislators को भी. Lawyers, of course, I have something for lawyers and law students who aspire to become good practicing lawyers in the future, that I will be coming to soon. Law students and academicians, they keep on researching on various laws, they come up with drafting research articles, papers and whatnot. तो इन सब में legal research के beneficiaries का element है. Everybody is time and again using this legal research and it is important for them. And yes, one thing which is noteworthy is that everybody is using their own different technique for their research, and this is something which is dependent upon the purpose of research. आपका जो बेसिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव है, आई वी कैन से इट लाइक दैट ऑल्सो, उस हिसाब से आपको अपनी रिसर्च को मोल्ड करना होता है टू गेन योर पर्टिकुलर पर्पस व्हाट यू वांट एंड फुलफिल इट बाय योर टूल ऑफ रिसर्च. चलिए अभी एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने आप लोगों से कहा था वो डिस्कस कर लेते हैं. हाउ टू रिसर्च ऑन केस लॉस. आई विल बी डिस्कसिंग दिस इन अ वेरी शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैं ये टॉपिक आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रही हूँ. स्पेशली केस लॉस के बारे में काफ़ी लोगों को मन में क्वेश्चन होता है कि केस लॉस को रिसर्च करना कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से एंड करना है. एंड एक्चुअली केस लॉस काफ़ी स्टूडेंट्स को, काफ़ी लॉयर्स को ढूंढने में काफ़ी तकलीफ होती है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो गुड रिसोर्सेज अवेलेबल नाउ. यू ऑल मस्ट बी नोइंग अबाउट द रिसोर्सेज. मैं रिसोर्सेज के बारे में अभी बात नहीं करने वाली हूँ बिकॉज एवरीबडी नोज अबाउट मैन्युफैक्चरर, एसएससी, इंडियन कानून, ये सब सबको पता होता है. लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर केस लॉस को फाइंड आउट कैसे करना है और यूटिलाइज कैसे करना है अपने केस ब्रीफ्स में, अपने ड्राफ्ट्स में, अपने रिसर्च आर्टिकल्स में, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड मैं उसी पॉइंट पर बात करने वाली हूँ. सो टेक बेनिफिट ऑफ द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. सबसे पहला स्टेप होगा बी क्लियर विद योर पर्पस. एज आई टोल्ड यू द पर्पस ऑफ रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन दैट ओनली योर टेक्निक डिपेंड्स. यू हैव टू बी क्लियर विद वॉट यू वॉन्ट. सपोज यू आर आर्ग्यूइंग अ केस. मैं एक लॉयर का एग्जाम्पल लेना बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगी यहाँ पे बिकॉज लॉयर्स के लिए केस लॉस एक बहुत ही अच्छा टूल है टू establish their case before the court, and also it helps them win the arguments in court. So first of all they should know what is the purpose for which they are entering into the research of case laws and what is their objective, क्योंकि उस हिसाब से उन्हें case laws को study करना होगा काफ़ी objective तरीके के साथ. Step 2 will be start with the research on the related topic. Now you will be thinking कि मैम हमें related topics के बारे में research करने के लिए क्यों कह रही है. This is something which is the best way. अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप डायरेक्टली केस लॉ से स्टार्ट कर दोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आपको उन टॉपिक्स में आपका आंसर मिलेगा नहीं और आप कहीं खो जाओगे उन जजमेंट्स में. सो स्टार्ट समथिंग विद अ टॉपिक विच यू वांट टू फाइंड आउट केस लॉज. उन टॉपिक्स पे रिसर्च करना स्टार्ट करो. आपको जब कोई सवाल का जवाब चाहिए होता है आप उसको गूगल पर डालते हो. सिंपली बेसिक एग्जाम्पल ये सब करते हैं एंड आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं. सो रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक that you can do by Google, by online modes and also by offline modes. You can refer many commentaries, journals. अगर आपके पास अच्छी लाइब्रेरी का एक्सेस है
आपके कॉलेज में, आपके कोर्ट में, कहीं पे भी यू कैन रेफर टू दीज कमेंट्रीज एंड जर्नल्स। उस पर्टिकुलर टॉपिक या आर्टिकल या सेक्शन प्रोविज़न जो भी है उसे पढ़ो, उसके ऊपर जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी रिसर्च करो एंड फाइंड आउट दोज थिंग्स। रीसेंट आर्टिकल्स पढ़ोगे तो उसमें रीसेंट जजमेंट्स कहीं ना कहीं आपको कोटेड मिलेंगे, कहीं ना कहीं रीसेंट केस लॉज आपको कोटेड मिलेंगे ही। फ्रॉम दैट यू आर एक्चुअली going in the right direction. So this step, if you start with this, you will not be lost in your own research and not be confused. आपकी रिसर्च को एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। देन ट्राई टू पिक केसेस ऑन योर पॉइंट। आपका जो साइड है, अगर सपोज आप डिफेंस साइड से आर्ग्यू करने वाले हो तो आपको आपके एंगल्स रेलेवेंट केसेस को शाफ्ट आउट करना पड़ेगा, एंड ऑन दैट पॉइंट यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन योर पर्पस एंड योर रिक्वायरमेंट। Then read the judgments of respective cases smartly. आपने देखा होगा मैंने ये स्मार्टली वर्ड को यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, इटैलिसाइज किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जजमेंट्स पढ़ने का स्मार्ट तरीका पता नहीं होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट रीड जजमेंट्स इन डिटेल, ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट, दैट इज़ द बेस्ट वे। इनफैक्ट हर लॉ स्टूडेंट ने, स्पेशली जब वो स्कूल में होता है, उसके लॉ स्कूल में, कॉलेज में, रोज़ एक जजमेंट रीड करने की हैबिट डालनी चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड टू एनहांस योर नॉलेज एक्चुअली एंड ऑल्सो योर स्किल्स। बट जब आप पर्पसिव रिसर्च कर रहे हो, आप मूड कोर्ट के लिए रिसर्च कर रहे हो, आप कोई कोर्ट केस के लिए रिसर्च कर रहे हो, आप आर्टिकल्स के लिए रिसर्च कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस कलेक्ट करूँ कम टाइम में, तो उस समय आप सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ पाते हो एंड उसको पूरी तरीके से तो नहीं पढ़ सकते। दिस इज़ समथिंग विच वी हैव टू एक्सेप्ट। सो ट्राई टू वर्क स्मार्टली ऑन इट। फर्स्ट रीड द हेडिंग ऑफ द केस, रीड द केस रिलेटेड टू विच टॉपिक, उसका नंबर क्या है, क्या वो रिट पिटिशन है, क्या वो अपील है, क्या वो क्रिमिनल केस है, सिविल केस है, ये आपको समझ में आ जाएगा पार्टीज के नाम एंड नंबर, उसका टाइटल देखकर। It is whether it is before Supreme Court, whether it is before High Court or some subordinate judiciary, वो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपके कितने काम का है एंड उसका प्रेसिडेंशियरी वैल्यू आपके केस में क्या हो सकता है। देन ट्राई टू गो into the initial paragraphs and try to understand the facts roughly. ज़्यादा facts में डिटेल में मत जाओ, बिकॉज आपको वर्ड टू वर्ड फैक्ट्स तो कभी मैच करने वाले जनरली मिलते नहीं है। यू फाइंड इट बट कम्प्लीटली नहीं। देन ट्राई टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ द केस एंड आप इसमें डरो मत एंड स्ट्रेट अवे लास्ट पेज पर चले जाओ और केस का आउटकम चेक कर लो। पहले आपको ये समझ में आ जाएगा क्या वो केस आपके काम का है या नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट रीड द केसेस दैट you don't have to use. I will come to that point again. But first you are trying to find out the cases that are relevant for you. So try to go to the outcome of that particular case and then you will get a direction कि आपको इस केस को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। Then try to find out, Control F का सिंपल टूल यूज़ करके आप आपके relevant words उसमें सर्च करके उस जजमेंट को स्मार्टली रीड कर सकते हो। कम से कम टाइम में ये समझ सकते हो कि ये जजमेंट किस पॉइंट पर बेस्ड है। सो इस तरीके से ट्राई टू गो थ्रू द जजमेंट्स एंड फाइंड आउट द रेलेवेंट केस लॉज फॉर योरसेल्फ। देन यू कैन सेग्रीगेट द रेशियो एंड ओबिटर पार्ट ऑफ द जजमेंट। अब ये रेशियो और ओबिटर क्या है? रेशियो इज द ऑपरेटिव पार्ट जो एक्चुअली रीजनिंग और रूलिंग है उस पर्टिकुलर केस में, एंड जो ओबिटर है दैट इज द बाय द वे सेइंग ऑफ द जज, दैट कैन बी एन ओपिनियन ऑफ द जज, जो उसमें ऑपरेटिव नहीं होता है बट जज कई बार बाय द वे भी कुछ स्टेटमेंट्स दे देता है, लेकिन आपके केस में रेशियो ही एप्लीकेबल होगा। सो डोंट ट्राई टू टेक ओबिटर इन फ्रंट ऑफ योर court and say that law should be applied according to that obiter part of the judgment. So this is a very big mistake which you don't have to do. So ये आपको पता होना चाहिए when you are reading a judgment. Then try to relate your facts to the case and present it well in your draft or arguments. You should be able to connect your case
with that particular case law. This is a very important step and here reflects your argumentative or drafting skill, and इसी से आप आपका केस जीत सकते हो. सिर्फ केस लॉ साइट करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उन केसेस को अपने केस के साथ रिलेट करना आना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश योर केस फ्रॉम द केसेस विच आर गोइंग अगेंस्ट योर साइड. तो उसके लिए आपको उन केसेस पर भी रिसर्च करना होगा जो आपके साइड के अगेंस्ट जा रहे हो, एंड यू शुड distinguish your case from those cases that are going against your side. This will help you argue your case very well. So these two steps will be very important for you. I hope you have got a very clear picture of the step-by-step guide that I have personally prepared on how you can research on case laws, and this will be definitely helpful for you अगर आप इस तरीके से confidently अपने case laws की study करोगे तो. And I hope this will be very helpful for you. Of course, legal battle जीतने में आपको लॉ आर्ग्यूमेंट्स को एक स्वॉर्ड की तरह यूज़ करना होगा, जिसमें रिसर्च आपकी शील्ड होगी. In the battle of law, arguments are your sword and research is your shield. Don't forget that. And all the best to every lawyer, law student, academician, and every person who is related to law discipline who is watching this particular video. All the best in your legal research. Thank you.